Good morning, students. See, today's class it is chapter 6, the Junk Seller. In this same chapter, before today's class, we learn about the many examples of multiplication, how to calculate, how to find out a product up to 3-digit number by multiplying 2-digit number with the help of box multiplication method. Now see, in today's class, it is about word problem. The students, what do you mean by word problem? Word problem is in the form of sentence, small story, and that information is given in the form of sentence, in the form of information, means in the form of story, and then that we have to find out what information is given there and what we have to find out. Then this type of the examples information is called word problem. Now see, first example, see Amit has taken a loan of rupees 3000 from a bank. क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? अमित, अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए बेटा, इस तरह के एग्जाम्पल में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी इज इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होती है दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन देयर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सी, टू नो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन देयर वी इज वेरी रिक्वायर्ड टू रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है. देखिए, Amit has taken a loan of rupees 3000 from a bank. अमित ने एक बैंक से मतलब 3000 रुपीज का लोन लिया. अब लोन मतलब क्या बेटा? कर्जा लेना या उधार लेना. हमें जो जरूरत पड़ती है उस जरूरत को पूरी करने के लिए कभी हम बैंक से या किसी और से मतलब उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं लोन. सी, अमित हैज टेकन ए लोन ऑफ रुपीज 3000 फ्रॉम ए बैंक. लेकिन जब हम लोन लेते हैं उस लोन को हमें रिटर्न करना होता है, पे करना होता है, and will pay per month rupees 540 for 6 months. उसने क्या किया अमित ने? जो 3000 रुपीज का जो लोन लिया, that loan amount he will not pay at a single time, at a time. वो एक टाइम वापस नहीं करेगा, बल्कि he will pay that small amount in 6 months. 6 months, for 6 months he will pay small amount, and that amount is rupees 540 rupees for 1 month, and he will pay up to 6 months. और 6 मंथ तक वो ऐसे इसे पे करेगा एट द रेट ऑफ रुपीज 540 पर मंथ. देन सी हाउ मच ही विल पे इन ऑल. तो 6 मंथ मिला के वो कितना पे करेगा, हाउ मच ही विल पे इन ऑल. तो कैसे करेंगे बेटा? सी दी फर्स्ट वन, लोन अमाउंट. लोन अमाउंट कितना है? रुपीज 3000. उसने लोन कितना लिया था? 3000. नाउ सी फॉर ईच मंथ, for each month how much rupees he will pay? Rupees 540. For each month it is 540 rupees he will pay, and now for each month it is rupees 540, and then number of months कितना है? Up to how many months he will pay? Number of months up to 6 months. In total number of months it is equal to 6. For number of months it is equal to 6. Okay, now see next, total amount in 6 months. Total amount in 6 months कितना होगा? देखिए भाई, total amount in 6 months it is rupees 540 in each month into multiply by 6. Into multiply by 6 हुआ. Now why we multiply by 6 here? Because rupees 540 is the amount of rupees amount pay in 1 month, and he pay up to 6 months, so it is 540 into 6. Now see what we have to do here now. अब हमें क्या करना है यहाँ पर? Now we have to multiply here. It is 540 into 6 into 6. देखिए 6 0 0, 6 4 the 24, carry 2, 6 5 are 30 plus 2, it is 32. It is 32. So now see total is here 3240. क्या हुआ यहाँ पर? It is 3240. See total amount in 6 months it is equal to 540 into 6, it is 3240. Yes.
तो व्हाट इज दिस 3240? ये आपका 3240 क्या है बेटा? दैट अमित विल पे रिटर्न अमाउंट 3240 इन 6 मंथ टू द बैंक। बैंक को वो आपको 3240 रुपीज रिटर्न करेगा या फिर रीपे करेगा। तो देखिए ही विल पे, द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच ही विल पे इन ऑल। देखिए ही विल पे रुपीज 3240 इन ऑल। इन ऑल क्या हुआ? ही विल पे रुपीज 3240 इन ऑल। वो कुल मिला के ही विल पे रुपीज 3240 इन ऑल, उसने कुल मिला के 3240 रुपीज को पे किया था। यस, इन 6 मंथ में। कर्जा कितना लिया था बेटा? लोन कितना लिया था? 3000। एंड नाउ से ही पेड मोर अमाउंट दैन 3000। उसको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा है, बट ही पे इन स्मॉल स्मॉल पार्ट। उसने क्या किया? स्मॉल स्मॉल पार्ट में ओनली रुपीज 540 इन ईच मंथ, ऐसे थोड़ा थोड़ा पे किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से रूमा हैड 9 रिक्शा। रूमा के पास क्या है बेटा? 9 रिक्शा है। रूमा हैड 9 रिक्शा। सी अर्न रुपीज 80 फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। एक दिन में वो एक रिक्शा से 80 रुपीज कमाती है। सी अर्न रुपीज 80 फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। एक दिन में वो एक रिक्शा से 80 रुपीज कमाती है। हाउ मच विल सी अर्न इन 10 डेज फ्रॉम ऑल रिक्शा। तो इस तरह के सभी रिक्शा से, मतलब ऑल 9 रिक्शा जो है उसके पास, उसे ऑल 9 रिक्शा से वो 10 डेज में कितना रुपीज, 10 डेज में कितना कमाएगी। क्वेश्चन देखिए, रूमा हैड 9 रिक्शा। सी अर्न रुपीज 80 फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। हाउ मच विल सी अर्न इन 10 डेज फ्रॉम ऑल रिक्शा। तो वो कितना कमाएगी, आइए देखते हैं। देखिए पहले बेटा यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिक्शा कितना है? इज इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ रिक्शा कितना है? इट इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ हाउ मच ही विल पे, हाउ मच ही अर्न इन 1 डे फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। एक दिन में वो एक रिक्शा से कितना कमा रही हो? रुपीज 80। कितना कमा रहे? फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। अर्निंग है उसका 80 रुपीज फ्रॉम ईच रिक्शा इन अ डे। नाउ देखिए टोटल अर्निंग या फिर अर्निंग ऑफ, देखिए नाउ फ्रॉम 10 रिक्शा इन अ डे। एक दिन में 10 रिक्शा से कितना कमाएगी फिर वो? रुपीज 80 इंटू 10 इज इक्वल टू रुपीज, सी 80 इंटू 10 करते हैं यहां पर 80 इंटू 10, 10 0 0 एंड 10 8 जार 80, इट इज रुपीज 8000। सी फ्रॉम 10 रिक्शाज इन अ डे इट इज रुपीज 80 इंटू 10, देन इट इज इक्वल टू 800। Now it is about only what beta? It is about only 1 rickshaw in 10 days. But now this question we have to find out about all rickshaw, means it is about 9 rickshaw. So next step we will write here. देखिए total earning from 9 rickshaw in 10 days equal to, see it is rupees 800 क्या बेटा? It is in 1 day. It is from 1 rickshaw in 10 days. No, in 10 days it is from 1 rickshaw. Now we have to find out about 9 rickshaw. So multiply by 9 here. So it is 800 into 9. It is 800 into 9. 800 into 9. 9 0 0 9 0 0 9 8 are 72. So what is this? It is rupees 7,200. What is this? It is 7,200. So what we have to write? How much will she earn? She will earn. तो आइए लिखते हैं. She will earn rupees 7,200
in 10 days from all rickshaws, all 9 rickshaws, from all 9 rickshaws. क्या लिखा है यहाँ पर बेटा? देखिए, C will earn ₹7,200 in 10 days from all 9 rickshaws. तो वो सभी 9 रिक्शा से 10 डेज में 7,200 का अर्निंग करेगी. यस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. सी क्या है? किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹34. किरण bought 1 kg plastic for ₹34 and sold 1 kg for 38. Then how much money does she earn by selling of 10 kg plastic? तो देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि 1 kg प्लास्टिक उसने सेल बाय किया था 34 रुपीज में, एंड देन इट वॉज सोल्ड फॉर 38 रुपीज. इट वॉज सोल्ड फॉर 38 रुपीज. तो डेफिनेटली see the buying price जो है it is 34 and selling price it is 38. The selling price is more here, so definitely she got profit here, means extra amount मिला, उसको ज्यादा अमाउंट मिला है, तो उसको लाभ हुआ है. लाभ मीन्स प्रॉफिट हुआ है. तो देखिए, पहले हम 1 kg पर कितना प्रॉफिट हुआ देखते हैं. तो पर kg बाइंग प्राइस इक्वल टू कितना बेटा? ₹34. ओके. पर केजी बाइंग प्राइस कितना है? ₹34. नाउ पर केजी सेलिंग प्राइस कितना है? ₹38. नाउ इट इज 38. नो, पर केजी सेलिंग प्राइस इज ₹38. नाउ प्रॉफिट ऑन 1 kg. प्रॉफिट ऑन 1 kg. 1 kg पर प्रॉफिट कितना हुआ? जो आपका सेलिंग प्राइस है 38 माइनस आपका जो बाइंग प्राइस है 34, इसको डिफरेंस निकालिए. इट डिफरेंस इज ₹4. 38 माइनस 4 की डिफरेंस हुआ. सो व्हाट इज दिस 38? 38 इज बाइंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस. इट इज बाइंग प्राइस. डिफरेंस इज ₹4. So this 4 is profit on 1 kg of plastic. Now it is about only 1 kg, and now see we have to find out about 10 kg here. हमें 10 kg पर निकालना है. क्या निकालेंगे? प्रॉफिट ऑन 10 kg क्या होगी? ₹4 into 10 is equal to ₹40. It is equal to ₹40. देखिए, प्रॉफिट ऑन 10 kg इक्वल टू ₹4 into 10 is equal to ₹40. तो इस मिला के वो ₹40 हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे बेटा? How much money does she earn? She will earn ₹40 by selling. She will earn rupees. देखिए, now I am writing here. She will earn ₹40 by selling 10 kg plastic. 10 kg plastic. Okay. She will earn ₹40 by selling. बाय सेलिंग लिखना पड़ेगा यहां पर. ओके. सी विल अर्न ₹40 बाय सेलिंग 10 kg प्लास्टिक. तो इस तरह का 10 kg प्लास्टिक परचेस सेल करके वो ₹40 कमाएगी. Next, it is same question, only numbers are changed here. Now, Kiran bought again 4 kg iron for ₹14 and sold it for ₹19. Then how much money does she earn by selling 32 kg iron? 32 kg iron. अब देखिए, पर kg buying price is equal to what? It is equal to ₹40. 14. It is equal to Kiran bought 1 kg iron for ₹14 and sold it for ₹19. How much money does she earn by selling 32 kg? See, per kg buying price it is equal to ₹14. Now, per kg
सेलिंग प्राइस कितना हुआ? इट इज इक्वल टू 19. It is equal to 19. Now next, profit या अर्निंग मीनिंग आर सेम. ओके, प्रॉफिट ऑन 1 kg इक्वल टू क्या हुआ? ₹19 माइनस ₹14. रुपीज माइनस, देखिए इट इज इक्वल टू रुपीज क्या बेटा यहाँ पर? आंसर इज ₹5. सी प्रॉफिट ऑन 1 kg 19 माइनस 14, इट इज ₹5. ओके, ₹5. तो ये हुआ आपका प्रॉफिट ऑन 1 kg. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द प्रॉफिट ऑफ 32 kg. तो क्या लिखेंगे फिर? प्रॉफिट ऑन 32 kg इक्वल टू 32 इंटू 5. 32 इंटू 5. तो आइए 32 इंटू 5. सी 5 2 are 10, carry 1, 5 are 15 plus 1, it is 16. So it is 160. So what is this? The profit on 32 kg, 32 into 5, it is 160. So what is this 160? The profit on selling of 32 kg iron. तो लिखेंगे how much money does she earn by selling? She earn ₹160 by selling 32 kg iron. By selling 30, देखिए she earned ₹160 by selling 32 kg iron. Okay, so this way in today's class we discuss some word problem. Thank you.